यशोदानन्दन व्रजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी श्री नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो आप सब पढ़ रहे हैं 9th चैप्टर भीष्मदेव की द पासिंग अवे ऑफ भीष्मदेव, भीष्म स्तुति। और आज हम चर्चा करेंगे 43rd वर्स पे, जो कि भीष्मदेव की स्तुति पूरे होने के बाद का अगला श्लोक है। तो भीष्मदेव हम ठीक है उस पर चर्चा करेंगे, पहले श्लोक पढ़ते हैं। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मनात्मानमावेश्य सोऽन्तश्वश उपारमत्। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मनात्मानम् आवेश्य सोऽन्तश्वस उपारमत्। सूत उवाच
कृष्ण एव भगवति मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मनात्मानमावेश्य सोऽन्तश्वास उपारमत्। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवति मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मनात्मानमावेश्य सूत उवाच कृष्णमेव भगवति मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मनात्मानमावेश्य सोऽन्तश्वास उपारमत्। सूत उवाच कृष्ण एव भगवति मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मनात्मानमावेश्य सोऽन्तश्वास उपारमत्। माताजी। सूत उवाच कृष्ण एव भगवति मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मनात्मानमावेश्य सोऽन्तश्वास उपारमत्। Word for word. Sutta Uvacha. Sutta Goswami said, Krishna, Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, Evam, only, Bhagavati, unto him, Manaha, with mind, Vak, speech, Drishti, sight, Vrittivi, activities, Atmani, onto the super soul, Atmanam, the living being, Aveshya, having merged in, Saha, he, Antashvasa, inhaling, Uparamat, became silent. Translation of purport Srila Prabhupada ji ke dwara Srila Prabhupada ki. Sutta Goswami said, thus Bhishmadev merged himself in the super soul Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, with his mind, speech, sight, and actions, and thus he became silent and his breathing stopped. Purport. The stage attained by Bhishmadev while quitting his material body is called Nirvikalpa Samadhi, because he merged his self into thinking of the Lord and his mind into remembering his different activities. He chanted the glories of the Lord, and by his sight he began to see the Lord personally present before him, and thus all his activities became concentrated upon the Lord without deviation. This is the highest stage of perfection, and it is possible for everyone to attain this stage by practice and devotional service. The devotional service of the Lord consists of 9 principles of service activities, and they are hearing, chanting, remembering, serving the lotus feet, worshipping, praying, executing the orders, fraternizing, and fully surrendering. Any one of them or all of them are equally competent to award the desired result, but they require to be practiced persistently under the guidance of an expert devotee of the Lord. The first item, hearing, is the most important item of all, and therefore hearing of the Bhagavad Gita and later on Srimad Bhagavatam is essential for the serious candidate who wants to attain the stage of Bhishmadev at the end. The unique situation at Bhishmadev's time of death can be attained even though Lord Krishna may not be personally present. His words of the Bhagavad Gita or those of Srimad Bhagavatam are identical with the Lord. They are sound incarnations of the Lord, and one can fully utilize them to be entitled to attain the stage of Sri Bhishmadev, who was one of the 8 Vasus. Every man or animal must die at a certain stage of life, but one who dies like Bhishmadev attains perfection, and one who dies forced by the laws of nature dies like an animal. That is the difference between a man and an animal. The human form of life is specially meant for dying like Bhishmadev.
ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवर्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाद्याय श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्ध अपसतान्तद्वन्द्वहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्भोगे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौराविर्भावभूमिस्त्वं निर्देष्टः सज्जनप्रिय वैष्णव सर्वभौमा श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरहतुषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। जयतां सुरतो पंगोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजं राधा मदन मोहनौ। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नाकरसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिसेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितौ कर्षन्वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये श्लोक में बताया गया है कि यहाँ लिखा है कि भीष्मदेव मर्ज हिमसेल्फ इन द सुपर सोल, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो निराकार जो मायावादी मर्ज करना चाहते हैं वैसे। यहाँ लिखा है विथ हिज माइंड स्पीच साइट एंड एक्शंस। मन से, वाणी से, कर्म से और क्या है साइट, देखने से, आंखों से। उन्होंने क्या किया? ये चार चीज़ों से सो रहे थे। कृष्ण के ये चार चीज़ों से वो कृष्ण के बारे में देख रहे थे, कृष्ण के बारे में सोच रहे थे, कृष्ण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, और वो उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। पुरपट में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ये अंतर है एक मनुष्य का शरीर छोड़ना और एक पशु के शरीर छोड़ने में। और इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ पशु, मनुष्य भी पशुओं की तरह शरीर छोड़ते हैं अगर उनका ध्यान भगवान में नहीं होता है। गीता का कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय क्या करना चाहिए? अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त कलेवरम्। और उस श्लोक के पहले क्या कहते हैं? यम यम वापी स्मरण भावम त्यजक्त अंत कलेवरम्, कि जो भी भाव होगा शरीर छोड़ते वक्त वैसा डेस्टिनेशन मिलेगा। और भक्तों के लिए कहते हैं कि अंतकाले च मामेवा, जब मेरे बारे में स्मरण होगा तो क्या होगा?
हम भगवान के धाम जाएंगे, या अगर गुरु की आज्ञा है कि हम कहीं जाके प्रचार करें तो हम वहाँ जाएंगे, पर बहुत सूटेबल अरेंजमेंट होगा। गीता में 6वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि सूची नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते, कि अगर कुछ समय बाद किसी का योग भ्रष्ट हो जाता है तो उन्हें या तो बहुत ही अमीर घर में उनका जन्म होता है, या तो बहुत ही ब्राह्मण के घर में शरीर जन्म होता है। दोनों में क्या होता है, भक्ति करने का अवसर मिलेगा। और अगर बहुत समय बाद, भक्ति के बहुत समय बाद अगर किसी का कुछ छूट गया और शरीर छूट गया, पूरा नहीं हुआ, तो प्रभुपाद कहते हैं दे टेक बर्थ इन द फैमिली ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स एंड सच अ बर्थ इज वेरी रेयर। तो कहने का अर्थ यह है कि जो हम कर्म करते हैं उसके आधार पर ही हम, जो हमारी थॉट प्रोसेस होगा एंड में, वो जो हम कर्म करते हैं उसके आधार पर होता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ज़िंदगी भर इंद्रिय तृप्ति करेगा और ये उसको सीक्रेट मिल गया कि इसमें तो शॉर्टकट है, हम सब कुछ पढ़ाई करने की शॉर्टकट की आदत है। हमारे देश में ये खासियत है, हर चीज़ का हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, इसीलिए करप्शन भी इतना ज़्यादा है। कौन लाइन में खड़े रहेगा, उसको 100 रुपये दे दो, आगे बढ़ो। जन्माष्टमी अभी आ रहा है, जन्माष्टमी भी लोगों का फ़ोन आता है, पास है क्या, पास कुछ जुगाड़ करो। जुगाड़ हम लोग फेमस है जुगाड़ के लिए। कॉलेज में फेस्ट होता था, उसके लिए जुगाड़ करके पास मिलता था, एडमिशन के लिए जुगाड़ करके पास एडमिशन मिलता था, हर चीज़ का जुगाड़। तो लोग ये श्लोक पढ़ के सोचेंगे कि ये हो गया जुगाड़, ज़िंदगी जियो जैसे भी जीना है, एंड में खाली भगवान के बारे में सोचो। क्यों ज़िंदगी भर मैं इतना मेहनत करूँ, 3:30 बजे उठूँ, मंगल आरती अटेंड करूँ, जप करूँ, क्लास में 8 बजे 8:15 बजे, भूख भी लगी है, नींद भी आ रही है, उस बीच में क्लास सुनना है, ऑस्टेरिटी है ये। हम देखते हैं कई बार परम पूज्य राधानाथ महाराज 4 घंटा, अभी ये संडे को परम पूज्य लोकनाथ महाराज ने 2.5 घंटे का क्लास लिया जू में, और इतने सारे भक्त ऐसे बैठ के सुन रहे थे 2.5 घंटा। मैं जब क्लास देता हूँ स्पेशली नए लोगों को, मैं पहले बोलता हूँ मैं 20 मिनट बोलूँगा खाली, तो आप जाग के रहिए 20 मिनट। तो लोग करते हैं हाँ ठीक है 20 मिनट मैनेज कर सकते हैं। पर अगर कोई 2.5 घंटे जाग रहा है, कोई अगर व्यक्ति रात को 8 बजे सो के सुबह 6 बजे भी उठे ना, उसके बाद भी अगर 2.5 घंटा प्रवचन हो और उसको अगर उसमें रुचि नहीं है तो उसको नींद आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि खाली हम कम सोते हैं इसीलिए हमें नींद आती है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, रुचि का प्रॉब्लम है। तो हम ऐसे नहीं शॉर्टकट ले सकते। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि एंड में खाली सोचना है, बाकी लाइफ जियो जैसे भी जीना है, वो नहीं कर सकते। भीष्मदेव की ये जो एंड का उनका जो सिचुएशन है, माइंड, बॉडी, साइट, एक्शन, थिंकिंग ऑफ कृष्णा एंड स्टॉप स्पीकिंग, ये कैसे होता है? जीवन भर ये चीज़ें करने से रुचि बढ़ेगी। अभी हमें बोर होता होगा भागवतम क्लास में या जप में, अभी हम सबका वो स्थिति है कि जप में हमारा मन यहाँ वहाँ भटकता है। कोई है जिसका नहीं भटकता होगा? एक आध माला में हम अटेंटिव होते हैं, या हर माला में थोड़े मंत्र में हम अटेंटिव होते हैं, है ना? पर मन भटकता है। मन 7:30 बजे के बाद क्या करना है उसमें जाता है, दिन भर क्या करना है उसमें जाता है, कल क्या हुआ उसमें जाता है, कभी कभी आध्यात्मिक कार्यों में भी जाता है। सेवा के बारे में सोचते हैं हम, अभी जन्माष्टमी ये करना है, वो बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं जब के टाइम पे, है ना? हमें वो लेफ्ट हैंड से जो लेफ्ट हैंड से लिखने का आर्ट एक्सपर्ट करना चाहिए। तो आप जब भी कर सकते हो और नोट भी बना सकते हो कि हाँ ये करना ये करना ये करना। बट अगर हम ये करते रहेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा मन लगेगा इस पर, ज़्यादा मन लगेगा। मैं बता रहा था संडे को 2.5 घंटा परम पूज्य लोकनाथ महाराज ने क्लास दिया। बहुत सारे भक्त बिना ऐसे झपकी लगाए सुन रहे थे महाराज का क्लास, और महाराज भी इतने रुचि से कह रहे थे। राधानाथ महाराज का क्लास कभी कभी 4 घंटा 5 घंटा पहले होता था, आजकल नहीं करते महाराज, पहले करते थे। लोग ऐसे ही बैठे रहते थे, सुनते थे। क्यों? रुचि डेवलप हुआ है, टेस्ट डेवलप हुआ है। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि
शरीर छोड़ना है तो किसकी तरह छोड़ना है? भीष्मदेव। उसका ये मतलब नहीं कि किसी को बोलो चलो यार एरोस का बेड लगा दो, मैं उस पर लेट जाऊंगा, ये हो गया भीष्मदेव की तरह शरीर छोड़ना, वैसा नहीं। ये माइंड, स्पीच, साइट एंड एक्शंस आर मर्ज्ड इन कृष्णा। कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, कृष्ण को देख रहे हैं, दर्शन ले रहे हैं कृष्ण का। आपने देखा होगा कि जब कोई भक्त शरीर छोड़ रहा होता है तो भक्त लोग क्या करते हैं, बड़ा सा पिक्चर लेके आते हैं कृष्ण का, देखो दर्शन लो कृष्ण का। क्योंकि शिव प्रभुपाद कहते हैं और उनके कान में जाके या तो प्रभुपाद का धुन बजाते हैं महामंत्र का, या तो चैंट करते हैं, क्योंकि सबसे आखिरी चीज़ जो जाती है वो है हियरिंग। तो पर ये आर्टिफिशियली नहीं कर सकते। अभी एक बॉन्ड बना लो, देखो आप लोग दो मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, जब मैं मरूंगा आ जाना, राधा माधव का फ्रेम लेके आना, अभी खरीद के दे देता हूँ तुमको। ये लो प्रभुपाद का चैंटिंग बॉक्स खरीद के देता हूँ, ये फर्स्ट कैंटो भागवतम पढ़ना, मुझे ये फोटो दिखाना, महामंत्र बोलना और हो गया। हम अगर जैसा जीवन जिएंगे वैसा परिस्थिति होगी। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे गोपी परंधन प्रभु, वो संस्कृत स्कॉलर थे, अमेरिकन थे पर संस्कृत में विद्वान बने, और उन्होंने अपनी संस्कृत पाठशाला खोली गोवर्धन में। और वो जैसे जो हरिनाम व्याकरण और ये शास्त्रों के आधार पर वो भक्तों को संस्कृत सिखाते थे। प्रभुपाद जी के किताबों के आधार पर संस्कृत सिखाते थे और वो प्रचार भी करते थे। तो एक बार क्या हुआ, ये है 2010 की बात, 10 या 11, प्रभु जी का एक प्रचार प्रोग्राम था चाइना में और एक प्रचार प्रोग्राम था रशिया में। और चाइना और रशिया, वहाँ से आप जा सकते हैं सीधा, चाइना से आप सीधा रशिया जा सकते हैं, और बीच में सिर्फ 3 दिन का ब्रेक था। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की। तो ये रशिया का प्रोग्राम और चाइना के प्रोग्राम के बीच में 3 दिन का अंतर था। तो जनरली वो क्या करते थे, वो 3 दिन एक्स्ट्रा वहाँ पे कहीं प्रचार करके फिर जाएंगे, या 3 दिन पहले जाएंगे और प्रचार करेंगे। पर उस बार उन्होंने क्या किया, वो ट्रिप में, नहीं 3 दिन है मैं वापस वृंदावन आऊँगा। तो भक्तों ने कहा आप वापस क्यों आ रहे हैं 3 दिन के लिए, इतना, वहाँ से तो 2 घंटे की फ़्लाइट है, आप वापस 6 घंटा यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से वापस 8-10 घंटा रशिया जाएंगे, वहाँ से तो पास है, 2 घंटे की फ़्लाइट है, आप जा सकते हैं। नहीं मुझे वृंदावन आना है। वो आए वृंदावन, उनके पाठशाला गोवर्धन के तट पर था, वहाँ आए, रात को रुके, सुबह उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो अगर ऐसे भक्त चाइना में या रशिया में भी शरीर छोड़ेंगे ना तो भी वो ग्लोरियस है, क्योंकि उन्होंने जीवन प्रभुपाद की सेवा में लगाया है। पर देखो भगवान ने अरेंजमेंट कैसे किया कि वो कोई लॉजिक नहीं था उसमें, इतना वापस फ्लाइट लेके यहाँ आओ, फिर 2 दिन बाद वापस फ्लाइट लेके जाओ। पर भगवान के इतने प्रिय बन गए वो, नहीं, इन्होंने ज़िंदगी बिताई है गोवर्धन में, तो इनका शरीर भी वहीं छूटे। तो हम बाकी सबको ठग सकते हैं पर हम कृष्ण को नहीं ठग सकते। हम बाकी सबको उल्लू बना सकते हैं, भगवान को नहीं बना सकते। तो जो अगर हमें पशु की तरह शरीर नहीं छोड़ना है और भीष्मदेव की तरह शरीर छोड़ना है तो हमें ज़िंदगी भर ये साधना भक्ति करनी है, और फिर कोई चिंता नहीं है। जैसे हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, उन्होंने उदाहरण सेट किया है कि हम इतना चिंतित नहीं है कि हम कैसे शरीर छोड़ेंगे, हमें सेवा की चिंता है। तो जब उनका शरीर फेल हो रहा था, सारे भक्त बोल रहे थे आप मत आइए, फिर भी वो देहरादून गए मीटिंग के लिए, अपना ब्यूरो मीटिंग, जो इंडिया के ट्रस्टीज़ हैं उनका मीटिंग, महाराज चेयरमैन थे, और वो मीटिंग चेयर करते करते महाराज ने अपना शरीर छोड़ा। एक उदाहरण है कि भगवान ने भक्त को वापस बुलाया गोवर्धन पे और शरीर छोड़ा। दूसरा उदाहरण है बैटल फील्ड पे शरीर छोड़ा, सेवा करते वक्त शरीर छोड़ा। तो ये भगवान की बेनेडिक्शन है।
श्रील प्रभुपाद जी, वैद्य ने उनको कहा, डॉक्टर ने उनको कहा, सारे लोगों ने उनको कहा प्रभुपाद अभी मत ट्रैवल कीजिए, आपका शरीर छूट जाएगा, आप ट्रैवल मत कीजिए। नहीं, मुझे लंदन जाना है मई 77। भक्तों ने उनको उठाया, उनके तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं प्रभुपाद इतने हल्के थे कि हम एक हाथ से उनको उठा सकते थे, सिर्फ हड्डी थे। पर प्रभुपाद ने कहा नहीं, इंग्लैंड के भक्तों ने सबसे ज़्यादा बुक्स बांटे 1976 मैराथन में, वो लोग जीते, तो मुझे जाके उनसे समय बिताना है, उनको मुझे अपना एसोसिएशन देना है, उनको उत्साहित करना है। और वो लोग प्रभुपाद को हाथ से उठा के गाड़ी में रखा, दिल्ली एयरपोर्ट पे हाथ से उठा के उन्होंने उनको प्लेन में बिठाया। प्रभुपाद हिल भी नहीं सकते थे और प्रभुपाद गए इंग्लैंड। प्रभुपाद ने कहा मुझे कोई चिंता नहीं, अगर मेरा लंदन में शरीर छूट गया तो छूट गया, प्रचार करते वक्त शरीर छूटना चाहिए। तो ये है भीष्मदेव की तरह शरीर छोड़ना। भगवान की इच्छा थी प्रभुपाद वापस आए, और प्रभुपाद ने कहा अभी मैंने तुमको दिखाया है आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे जीवन जीना चाहिए भगवान की सेवा में, अभी मैं तुमको दिखाऊंगा आर्ट ऑफ डाइंग, कैसे शरीर छोड़ना है। अभी हम लोग थोड़े दिन पहले वृंदावन में थे, तो आप में से कितने लोग गए हैं वृंदावन और श्रील प्रभुपाद के रूम में गए हैं? तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद का जो बेड है ना वहाँ पे, वो एक्चुअली अंदर के रूम में था। प्रभुपाद का रूम फर्स्ट फ्लोर पे था। आप कभी जाएंगे तो बाहर कोर्टयार्ड है जहाँ भक्त चैंट करते हैं प्रभुपाद के रूम में, वहाँ से एक सीढ़ी जाती है ऊपर, और कभी अगर भीड़ कम है आप रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ के भक्तों को तो वो खोल के देंगे आपको ऊपर का फ्लोर। वहाँ श्रील प्रभुपाद रहते थे और बाहर वरांडा में उनका मसाज होता था, सब फोटोज़ हैं। पर क्योंकि श्रील प्रभुपाद का शरीर इतना वीक हो गया तो उनका बेड वो हॉल में लाया गया जहाँ अभी भी है, और वहाँ पे आप फोटो देखेंगे कि प्रभुपाद ऐसे लेटे हैं और प्रद्युम्न प्रभु उनके जो ट्रांसलेटर थे वो डिक्टाफोन उनके लिप्स पे रखा है, और प्रभुपाद पुरपट दे रहे हैं 13th चैप्टर, ये 10th कैंटो का 13th चैप्टर, ब्रह्मा जी और कृष्ण का जो चर्चा था, ब्रह्मा जी जो स्तुति करते हैं ब्रह्म विमोहन लीला, तो उसके बारे में। और बस शरीर छोड़ने के 2 दिन पहले तक प्रभुपाद परपट दे रहे हैं, ऑल्दो वो शरीर हिला नहीं सकते हैं पर वो परपट दे रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल सेट किया है, ये उनके शिष्यों ने एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर हम जिंदगी भर, जीवन भर सेवा में लगे रहेंगे, जीवन भर साधना भक्ति करेंगे, तो एंड का हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो कर्मी हैं, जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन जी रहे हैं, वो जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे उनका डर बढ़ता है कि मेरे बुढ़ापे में क्या होगा, और जब एकदम बूढ़े जाते हैं तो डर होता है कि आगे जाके क्या होगा, ये सब छोड़ना तो है, आगे जाके क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, ये डर होता है। वैसे भक्त को कोई डर नहीं है, क्योंकि अगर हमने जीवन जिया है ऐसे तो भगवान देख लेंगे, वो भगवान का प्रॉब्लम है, वो भगवान का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है कैसे मन अभी भगवान की सेवा में लगाने, वो हमारा प्रॉब्लम है। एंड में क्या होगा वो राधा माधव देखेंगे, उनका प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जीवन भर भक्ति करने के लिए ये 9 प्रिंसिपल है, नवविध भक्ति। प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि आपने क्या सीखा स्कूल में, तो प्रहलाद महाराज ने यह श्लोक बोल दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार के जो प्रोसेसेस हैं भक्ति में, प्रभुपाद कहते हैं ये सारे या इसमें से कोई भी एक काफ़ी है हमें भगवान के करीब लाने के लिए, हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए, हमारा जो भगवान के प्रति खोया हुआ प्रेम है उसको दोबारा से जागृत करने के लिए। ये 9 या 9 में से कोई भी एक। अभी आप बताइए ये 9 में से सबसे इम्पॉर्टेंट 2 हैं जो अगर हम करेंगे तो ये बाकी 7 भी हमारी रुचि आएगी। वो 2 कौन से हैं? श्रवण और कीर्तन, श्रवण और कीर्तन, हियरिंग एंड चैंटिंग।
ये दो चीज़ के आधार पर बाकी सारे प्रोसेसेस हैं। श्रीला प्रभुपाद ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम हमें दिया है, वो मॉर्निंग प्रोग्राम ये दो चीज़ों को एम्फसाइज करता है। हम मंगल आरती में कीर्तन करते हैं, हम जप करते हैं, फिर हम क्लास सुनते हैं, हम श्रवण कीर्तन बैक एंड फोर्थ हो रहा है। अभी शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि ये 9 प्रोसेसेस के लिए कौन 9 व्यक्ति हैं जो इनमें एक्सपर्ट हैं। तो आप बताइए, श्रवण में कौन एक्सपर्ट है? परीक्षित महाराज, क्योंकि वो हमें 1 घंटे का क्लास डिफिकल्ट लगता है। परीक्षित महाराज कितने दिन सुन रहे थे? 7 दिन और 7 रात। 7 दिन और 7 रात। ये जो निर्जल एकादशी होती है ना, उसमें कई भक्त निर्जल के साथ जागरण भी करते हैं। वो 24 घंटा जागते हैं। कई लोग करते हैं 128 राउंड्स, 192 राउंड्स। अभी वो उतने सारे राउंड्स अगर करने हैं आपको, तो आपको 18 से 20 घंटे जप करना होता है। और कई भक्त करते भी हैं। कई भक्त क्या करते हैं, अपना माला तो उतना ही करेंगे, पर जागरण करके कथा सुनते हैं। आप सोचिए, सुबह 8 बजे हमें नींद आती है, तो रात को 10 बजे 11 बजे क्या होगा? हम लेट जाएंगे इधर। टेस्ट है। तो परीक्षित महाराज वो समझ गए कि अभी मेरे जीवन में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, और मुझे और आपको ये एक भ्रम है कि हमारे जीवन में अभी बहुत टाइम बाकी है। मुझे भी ये भ्रम है, और आप लोगों को भी ये भ्रम होगा कि अभी तो टाइम है। ऑल्दो हम देखते हैं कि इतने सारे उदाहरण हमारे सामने आते हैं कि लोग अनटाइमली चले गए। अभी इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी अहमदाबाद में, प्लेन क्रैश हो गया। उसमें क्या सब बुजुर्ग थे क्या? और जो बिल्डिंग में क्रैश हुआ उसमें सब बुजुर्ग रहते थे खाली? नहीं, हर प्रकार के छोटे बच्चे भी थे वो प्लेन में, नौजवान आप सबकी तरह थे। वो बिल्डिंग में तो स्टूडेंट्स थे। क्या उनको पता था ये होने वाला है? क्या गारंटी है कि हम जिएंगे 60, 70, 80 साल तक? अभी एटलीस्ट मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है, अभी मुझे उतना इंटेंसिटी नहीं आ रहा है ना, आगे जाके आएगा। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब ये आएगा मन में। क्यों? तभी समय नहीं बचेगा। पर क्या गारंटी है कि हम तब तक जिएंगे? और अभी तो हमारे पास सेहत है, हेल्थ है, आगे जाके वो भी नहीं रहेगा। अभी तो खाली नींद आ रही है ना बैठते वक्त, आगे जाके घुटना दुखेगा, पीठ दुखेगा, सडनली याद आएगा दवाई लेना है। उसमें कहाँ हम श्रवण कर पाएंगे अच्छे से? तो इसीलिए ये समय है, अंग्रेजी में कहते हैं टाइम इज नाउ। ये समय है कि मन को ये प्रोसेसेस में लगाना है, श्रवण कीर्तन में। तो श्रवण परीक्षित महाराज, वो अर्जेंसी था उनके अंदर। कीर्तन सुखदेव गोस्वामी। क्यों? वो क्यों है आचार्य, एक्सपर्ट इन कीर्तन? क्योंकि 7 दिन 7 रात वो बोलते रहे। बोलना तो सबको पसंद है, पर 7 दिन 7 रात भगवान के बारे में बोलते रहे। हमारे बारे में बोलना तो हम भी बोल सकेंगे 7 दिन 7 रात। पता है मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे अंदर ये खासियत है, ये क्वालिटी है, पता है ऐसे किया मैंने, उसको ऐसे अपने बारे में बोलते रहेंगे। या हमारे कुछ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, भौतिक चीज़ों के बारे में हम बोल सकते हैं बहुत। भगवान के बारे में अभी हम लोग थोड़े साल हो गए भक्ति के लिए, फिर भी अगर बोला जाए कि 1 घंटे का क्लास देना है, हमें पढ़ना पड़ता है। नहीं तो थोड़े टाइम बाद बैठे रहेंगे, हम आपका फेस देखेंगे, आप हमारा फेस देखेंगे, पढ़ना पड़ता। पर सुखदेव गोस्वामी इतना भक्ति था कि वो 7 दिन 7 रात परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाते रहे। और जैसे परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते थे, सुखदेव गोस्वामी की रुचि और बढ़ती थी, और वो और डीप जाते थे, और डीप क्वेश्चन होता था, और डीप जाते थे वो। तो ये उनका रुचि था। तो श्रवणम कीर्तनम सुखदेव गोस्वामी, स्मरणम प्रहलाद महाराज। हिरण्यकशिपु ने जितने प्रॉब्लम्स लाए प्रहलाद महाराज के सामने,
प्रहलाद ने एक बार भी अपने आप को उससे बचाने का प्रयास नहीं किया। प्रहलाद ने क्या किया? सिर्फ वो विष्णु के बारे में सोच रहे थे, भगवान के बारे में सोच रहे थे। तो विष्णु स्मरणम, प्रभुपाद जी कई लेक्चरों में बोलते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कोई और स्मरणम नहीं, डेमीगॉड स्मरणम नहीं, भौतिक स्मरणम नहीं, विष्णु स्मरणम, भगवान के बारे में सोचना है। फिर विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पाद सेवनम में कौन है आचार्य? लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, क्योंकि लक्ष्मी जी हमेशा विष्णु जी के पैरों पर रहती है और सेवा करती है। विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अर्चनम पृथु महाराज, पृथु महाराज महान महाराज थे, किंग थे, पर उनकी मेन उनका जो रुचि था वो अर्चन में था। वंदनम अक्रूर जी, आप सबको ये पता होना चाहिए। एक ये 9 प्रोसेसेस हैं और ये इनके 9 मेन आचार्य हैं, और फिर हम प्रयास करेंगे आगे बढ़ने के लिए। अक्रूर जी का एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है यहाँ पर? क्योंकि अक्रूर जी ऑल्दो वो कंस के गवर्नमेंट में सेवा करते थे, कंस के लिए सेवा करते थे, पर वो भगवान के भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे। और जब कंस ने उनको कहा कि आप जाके कृष्ण बलराम को लेके आइए, अक्रूर जी को पता था कि कंस का ये गलत प्लान है, कंस का विचार अलग है, और अक्रूर जी सोच रहे हैं कि लोगों को लगेगा कि मैं कंस के प्लान में साथ दे रहा हूँ। तो पूरा टाइम जब वो मथुरा से वृंदावन जाते हैं, ये 10th कैंटो में पूरा एक चैप्टर है अक्रूर जी की स्तुति, उसमें अक्रूर जी यही सोच रहे हैं कि क्या कृष्ण समझ पाएंगे कि मैं उनका भक्त हूँ, कृष्ण क्या कर रहे होंगे, क्या वो मुझे पहचानेंगे, क्या वो मुझे ललकारेंगे, क्या करेंगे कृष्ण। और कृष्ण 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 ऐसे ही कृष्ण के बारे में सोचते 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 प्रेयर्स ऑफर करते करते वो वृंदावन पहुंच गए। तो ये अक्रूर जी के प्रेयर्स। वंदनम दास्यम हनुमान जी, सख्यम अर्जुन। कृष्ण 4th चैप्टर में जब वो अर्जुन को बताते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अव्ययम, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इंस्ट्रक्शंस, ये मैं आपको पहली बार नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक विवस्वान को बोला है। फिर एवं परंपरा प्राप्तम इमं राशयो विजु, ये परंपरा चलते आ रही थी पर कहीं तो ये टूट गई, और अभी मैं इसको रीइस्टैब्लिश कर रहा हूँ। स एवायम मया तेद्या योगा प्रोक्ता पुरातना, क्यों? भक्तों में सखा चेती रहस्य ये तद उत्तम, ये उत्तम रहस्य मैं तुमको दे रहा हूँ अर्जुन, क्योंकि तुम एक भक्त हो और मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो। तो फ्रेंडशिप का एक बेस्ट एग्जाम्पल है अर्जुन। और प्रभुपाद बताते हैं एक परपट में, ये जो श्लोक प्रहलाद महाराज ने बोला है 7th कैंटो में, इस श्लोक का आप परपट पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि फ्रेंडशिप मतलब भगवान की आज्ञा का पालन करना। हम सोच सकते हैं ना कि बाकी सब प्रोसेस तो हम अप्लाई कर सकते हैं, दास्यम भी हम अप्लाई कर, दास्य भाव में हम भगवान की भक्ति, ये सख्यम को हम कैसे अप्लाई करें? हम क्या बोल फ्रेंडशिप डे के दिन भगवान को फ्रेंडशिप बैंड पहनाएं, या हम बोले भगवान मैं और आप फ्रेंड हैं, वो थोड़ा रसाभास हो जाएगा ना, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम भगवान के दास हैं। तो ये फ्रेंडशिप कैसे आ गया? क्योंकि अगर फ्रेंडशिप आएगा तो थोड़ा इनफॉर्मल बन जाएगा। हाँ ठीक है ना भगवान, आज मैं आपको भोग नहीं लगा रहा हूँ, आज मैं पहले खाऊंगा। या ठीक है आपका ड्रेस या मेरा ड्रेस ज़्यादा अच्छा है, जन्माष्टमी के लिए आपके लिए हम बनाएंगे अच्छा एम्ब्रॉयडरी का ड्रेस, हमारे लिए भी बनाएंगे। प्रभुपाद कहते हैं सख्यम मीन्स अपने फ्रेंड की आज्ञा का पालन करना। तो वो सख्यम में भी एक अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज अ सुपीरियर फ्रेंड, वो एक फीलिंग है। तो अर्जुन ने क्या किया, जब कंफ्यूज थे तो भगवान से चर्चा कर रहे थे, पर जब समझ गए तो उन्होंने क्या बोला, करिष्ये वचनम तवा, आई विल फॉलो व्हाट यू से। तो प्रभुपाद कहते हैं कि
अब मित्र के आज्ञा का पालन करना। और फिर प्रभुपाद कहते हैं वो परपट में, भगवान गीता में क्या कहते हैं, कौन सबसे प्रिय है, जो प्रचार करे। तो ये सख्य का भाव हम कैसे अप्लाई करेंगे, भगवान का प्रचार करके। हम भगवान का प्रचार करेंगे तो ये सख्यम का भाव एप्लीकेबल होगा। नॉट कि हम फ्रेंडशिप करें वैसे, बट भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं वेल विशर हूँ, मैं सुहृद हूँ। संस्कृत में फ्रेंड के 3 शब्द होते हैं, मित्र, बंधु और सुहृद। मित्र मीन्स नॉर्मल, जैसे हम लोग फ्रेंड बोलते हैं। बंधु मीन्स थोड़ा और अच्छा फ्रेंड, और सुहृद मतलब बेस्ट फ्रेंड। और सुहृद सिर्फ एक ही है, क्योंकि वो लाइफ आफ्टर लाइफ हमारा फ्रेंड है, सुहृद है, वो है कृष्ण। तो लाइफ आफ्टर लाइफ हम ये सख्य भाव में हम सेवा कर सकते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करें और जब हम प्रचार करें। प्रभुपाद कहते हैं ये प्रचार का भाव है, उससे हम बताते हैं कि हाँ भगवान आप हमारे वेल विशर हैं, आप हमारे सुहृद हैं, हम सख्य भाव में हैं। तो ये है सख्य में सेवा करना। और आत्मनिवेदनम, हर चीज़ को भगवान के सेवा में लगाना। और आत्मनिवेदनम के एग्जाम्पल कौन है, बलि महाराज। क्योंकि जब उनको पता भी चला कि ये विष्णु है, और उनके गुरु ने कहा कि ये विष्णु है, मत दो कुछ भी, तो बलि ने कहा नहीं, विष्णु है तो सब कुछ देना है, अपने गुरु को रिजेक्ट कर दिया। और जब विष्णु, जिन्होंने चीटिंग किया, ये सिर्फ कृष्ण का, एक्चुअली वो प्रभुपाद कहते हैं परवर्टेड रिफ्लेक्शन, तो ये सब अभी बाकी सब लोग ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। पर विष्णु ने चीट किया, उसके बाद चीट करने के बाद कहा कि मेरे 3 स्टेप्स, ये मेजरमेंट के 3 स्टेप्स चाहिए मुझे, और फिर बड़े बन गए। और फिर उसके बाद खुद चीटिंग करने के बाद बलि को बोलते हैं कि तुम चीटर हो, क्योंकि तुमने अपना जो प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया। तीसरा स्टेप कहाँ रखूँ? खुद चीटिंग करने के बाद बलि को कहते हैं कि चीटर तुम हो। मैं कैसे चीटर हूँ? नहीं, आप 3 स्टेप बोला, हाँ, पर आपके वो 3 स्टेप थे। बलि ने ऐसे नहीं सोचा, हम लोग ऐसे सोचेंगे अरे प्रभु आप चीटिंग कर रहे हैं, वो टाइम पे सब सख्यम वख्यम सब हट जाएगा। अरे यार कैसे कैसे आप अच्छे से आप चीटिंग कर रहे हैं, आप ये थोड़ी है। नहीं, आप मेरा सिर लीजिए, बलि महाराज कहते हैं। सब ले लिया आपने, ये बाकी है ना, इस पे रखिए अपना पैर। और उस पे पैर रखने के बाद भगवान ने क्या किया, बलि को ग्लोरीफाई नहीं किया स्टार्टिंग में, क्या किया, उसके पहले बंदी बना दिया। बंदी बना दो इसको, इसने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया है। आप कभी जाके देखना, बीबीटी का एक पेंटिंग है, ये पास टाइम का एक पेंटिंग है, गूगल पर डालेंगे ना आ जाएगा। तो उसमें है बलि महाराज ऐसे खड़े हैं, वामन देव बन गए त्रिविक्रम, उनका ऐसे है, और लोग ऐसे देख रहे हैं। तो उसमें एक व्यक्ति है जो ऐसे देख रहा है कि अरे सच में मुझे भगवान का भक्त बनना चाहिए क्या, देखो ऐसे रिजल्ट्स है भगवान का भक्त बनने से। तो बलि ने कहा नहीं, एंड देयरफॉर ही इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आत्मनिवेदनम, गिविंग एवरीथिंग। और प्रभुपाद एक जगह कहते हैं कि अम्बरीश महाराज इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑल दीज थिंग्स। हम 9th कैंटो में अम्बरीश महाराज का कथा सुनते हैं, उसमें एक श्लोक है, 3 श्लोक है एक्चुअली, सवै मन कृष्ण पदारविंदयो वासांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन, ऐसे करके 3 श्लोक है, जिसमें अम्बरीश महाराज के दिनचर्या के बारे में बताया गया है। और उसमें ये सारे 9 एप्लीकेबल हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हमें पशु की तरह मृत्यु नहीं चाहिए, ह्यूमन बीइंग के रूप में भी पशु की तरह मृत्यु नहीं चाहिए, मतलब हमारे भौतिक जिंदगी के बारे में सोचते या तो डर के शरीर नहीं छोड़ना है, तो भक्ति करनी है, तो भीष्मदेव की तरह शरीर छूटेगा। और भीष्मदेव की तरह शरीर छोड़ना है तो जिंदगी भीष्मदेव की तरह जीनी है, और उसका मतलब भक्ति में। और प्रभुपाद कहते हैं ये 9 प्रोसेसेस अगर हम करें या इसमें से एक भी करें अच्छे से, तो हमारी रुचि भगवान की तरफ होगी। और जब हमारा रुचि भगवान की तरफ होगा तो ये एक फॉर्मेलिटी है, शरीर कैसे छूटेगा, एक फॉर्मेलिटी है।
जब हम भगवान की सेवा करेंगे अच्छे से, तो ये तो वो तो भगवान का प्रॉब्लम है, वो देखेंगे। एक बहुत अच्छा स्टोरी है कि एक माताजी थी, उसका कलकत्ता में, और वो उनका आ गया था समय कि अभी बहुत बुज़ुर्ग हो गए, शरीर छोड़ना है। तो उनकी बेटी उसने पता किया, और ये लोग एस्कॉन डिवोटीज़ नहीं थे, तो उसकी बेटी ने पता किया कि कहाँ है मंदिर। उसकी माँ ने बोला कि अभी शरीर छूटेगा तो एक पिक्चर लेके आओ और मुझे दिखाना। ऐसे बोलते हैं, फिर माँ का हालत और ख़राब हुआ, तो बेटी ढूंढ रही थी कहाँ एस्कॉन मंदिर, हम जाके भगवान का एक फ़ोटो लाना चाहते हैं। तो वो कोई बहुत ऑड टाइम पे गई, जब मंदिर बंद था, शॉप बंद था, और अभी माँ की हाल बहुत ख़राब थी, कभी भी शरीर छूटेगा। तो वो एकदम रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो चाहिए। तो कैसे तो करके वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन्होंने उनको मंदिर के कोई मेन अथॉरिटी के पास भेजा। तो वो अथॉरिटी ने बोला सॉरी अभी तो बंद है, वो चाबी किसके पास है पता नहीं, वो भक्त कहीं तो मिल नहीं रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहा है, कहाँ से हम फ़ोटो दें आपको। पर वो इतना इंसिस्ट कर रही थी, तो वो भक्त ने क्या किया, अपने रूम का एक फ्रेम दे दिया। उनके रूम में वृंदावन के राधा श्याम सुंदर का फ्रेम था, वो उनको दे दिया, ठीक है आप ले जाइए। तो हुआ, लेके गई, वो ने माँ को दिखाया, शरीर छोड़ा। 3 दिन बाद वो फ्रेम लेके वापस मंदिर गई। अभी वो शांत थी, उस दिन तो वो बहुत हड़बड़ा रही थी, बहुत एजिटेटेड थी कि माँ का शरीर छूट रहा है, जल्दी दीजिए। 3 दिन बाद उसने शांति से जाके वापस, वो जो डिवोटी हैं उनको बहुत थैंक यू बोला, और उनको वो फ़ोटो वापस लौटाया। और उन्होंने बोला कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जब मेरी माँ बहुत साल पहले जब थोड़ी यंग थी, तब वो शिला प्रभुपाद से मिली थी वृंदावन में, और तब ये कृष्ण बलराम मंदिर बन रहा था, और तब प्रभुपाद को लक्ष्मी की आवश्यकता थी मंदिर बनाने के लिए। तो मेरी माँ ने क्या किया, अपने गोल्ड बैंगल्स ये वो प्रभुपाद को दे दिया कि ये लीजिए आप डोनेशन, आप स्वामी जी आप कह रहे हैं मंदिर बनाना, ये लीजिए मेरे आभूषण ले लीजिए। तो प्रभुपाद ने उसको कहा कि आपने ये सेवा किया है, भगवान आपके कठिन समय में आपकी रक्षा करेंगे। तो उन्होंने आगे जाके वहाँ राधा श्याम सुंदर आए, और वही राधा श्याम सुंदर कहाँ, कलकत्ता में उनके पास फ़ोटो के रूप में आ गए एंड में, और उन्होंने वो राधा श्याम सुंदर का दर्शन लिया और शरीर छोड़ा। तो सेवा, ये बाकी सब अगर हम जुगाड़ लगाएंगे कैसे शरीर छोड़ना है तो कुछ नहीं होगा। पर अगर हम अच्छे मूड में जो भी दिक्कतें आ रही है उसको टॉलरेट करके, ज़िंदगी में कितने दिक्कतें हैं, हमारा शरीर दिक्कत देता है, शरीर प्रॉब्लम देता है, मन उससे ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, कभी कभी भक्त उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं, वो भी हमारा मन ही है, मन प्रॉब्लम दे रहा है। हमारा कर्म हमें प्रॉब्लम देता है, कभी कौन सा बुरा कर्म फ्रुक्टिफाई हो जाता है, कठिनाई आती है, कुछ दिक्कत आती है जीवन में, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। पर अगर हम मन बना लें ये सारे को खाली टॉलरेट करना, और कोई ऑप्शन नहीं है, पर ये छोड़ना नहीं है, तो कैसे शरीर छूटेगा, वो एक खाली फॉर्मेलिटी है। तो ये 9 प्रोसेसेस है भक्ति के, इसे हम उत्साह से करें। एक चैंटिंग के लिए या कोई भी एक्टिविटी के लिए एक बहुत अच्छा मेडिटेशन है। हम लोग हमेशा सोचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चैंट कर रहे हैं तो हमारा अटेंशन थोड़ा घड़ी पे होता है, या अभी भी एक घड़ी पे 4 मिनट बाकी है, बाय द वे 9 बजने के लिए, 4 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो रहता है कि हाँ ठीक है मेरा सेवा अभी शुरू होने वाला है, पर हम भूल जाते हैं कि हमारा साधना भी हमारा सेवा ही है, वो भी एक सेवा है। भगवान अल्टीमेटली क्या है, सेवा से क्या मिलना है, कृष्ण प्रेम। वी हैव टू कम क्लोज, वी विल कम क्लोजर टू गॉड। तो जब से भागवतम क्लास सुन के, गुरु पूजा अटेंड करके, वो सब भी वही है। तो ये एक अच्छा मेडिटेशन है कि कभी भी मन भटक रहा है तो नहीं, अभी मैं अगर ध्यान पूर्वक सुनूंगा, या मैं ध्यान पूर्वक, मैं बहुत बार देखता हूँ, मैं भी गिल्टी हूँ ये चीज़ का, कि गुरु पूजा के टाइम पे हमें लगता है ये फॉर्मेलिटी है, ध्यान यहाँ वहाँ है, कोई कुछ फ़ोन देख रहा है, कुछ यहाँ देख रहा है, कुछ कर रहा है। पर अगर हम सोचे वो टाइम पे
ये 10 मिनट जो प्रेयर हम गा रहे हैं, अगर मैं श्रील प्रभुपाद को देख के, श्रील प्रभुपाद के बारे में सोच के, और मुझे अगर ये मीनिंग पता है, तो मैं उस मूड में गुरु पूजा गाऊँ तो मुझे बहुत लाभ मिलेगा, है ना। गुरु पूजा ये नहीं है खाली कि हमने बस फ्लावर ऑफर कर लिया और हो गया। जो एबे यश कुशक त्रिभुवन कि आपका यश तीनों लोकों में है अभी, अगर वो टाइम पे मैं श्रील प्रभुपाद के बारे में सोचूं कि प्रभुपाद आपने क्या किया है, और डेमी गॉड्स भी आपके अचीवमेंट्स के गुण गा रहे हैं, उस मूड में अगर मैं वो एबे यश कुशक त्रिभुवन गाता हूँ तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वैसे ही हम गाते हैं वो हाँ प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, तो हम अगर वो एक्चुअली गाएं उस मूड से, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसी प्रकार भागवतम क्लास में पता है 1 घंटा बैठता ही है, तो मन को बोले ठीक है कोई बात नहीं, नींद आ रही है, बोर हो रहा है, सुनते हैं, मुझे ही बेनिफिट मिलेगा। तो इससे क्या होगा, ये जो श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वंदनम कर रहे हैं, हमें उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर हम सोचें कि ये भी डिवोशनल सर्विस है, ये गुरु पूजा गाना भी भक्ति है, ये भी मेरा एक सेवा है। ऐसा नहीं कि जैसे यश प्रभु ने आज गाया खाली उनका सेवा है, और श्री सुदामा प्रभु गुरु पूजा कर रहे थे उनका सेवा है, बस हम सबका सेवा अगर हम गा रहे हैं तो वैसे ये वंदनम जो है, अर्चनम श्री सुदामा प्रभु कर रहे हैं, कीर्तनम ये कर रहे हैं, पर हमारा भी वो कीर्तनम और वंदनम होगा अगर हम उस मूड से गाएं, उस मूड से जप करें, उस मूड से भागवतम क्लास सुनें। ये जो 9 प्रोसेसेस हैं और इनके 9 हेड्स हैं जो हमने अभी बताए, वैसे ये 9 एक्सपर्ट्स रामायण में भी बताए गए हैं कि ये 9 प्रोसेसेस के एक्सपर्ट्स हैं रामायण में भी। रामायण में श्रवणम के एक्सपर्ट कौन है? सोचो, अभी नींद सबका उड़ जाएगा। हम कह सकते हैं, पर अगर हम भक्ति के मूड में बोले, कौन है जो हमेशा जहाँ भी राम कथा होती है वो पहुँच जाते हैं? हनुमान जी। तो भागवतम में हनुमान जी दास्य के एक्सपर्ट हैं, रामायण में वो श्रवण, अभी कीर्तन लवकुश और वाल्मीकि मुनि रामायण बोलते हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अहिल्या। रामायण में बताया गया है कि क्योंकि ऑल्दो वो रॉक के फॉर्म में थी, शी वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ लॉर्ड राम। उनको शाप मिला था और वो रॉक के फॉर्म में थी, बट शी वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ लॉर्ड राम, इतना कि भगवान ने युग चेंज कर दिया, सत्य द्वापर त्रेता कली। हम ये सोचते भी नहीं, हाँ सत्य त्रेता द्वापर कली। कोई पूछेगा अरे 1 के बाद 3 आता है, फिर 2 आता है, फिर 4 आता है, ये कौन सा मैथ्स है? 1 के बाद क्या आता है? प्रसाद है, सारे आइटम है उसमें। 1 के बाद 2, तो सत्य के बाद क्या आता है? द्वापर आता है, फिर त्रेता आता है, फिर कली आता है। पर भगवान ने चेंज कर दिया। क्यों? अरे यार वो इतना मेरा बारे में सोच रही है, उसको लिबरेट करना है, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे अपना पैर रखना है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम लक्ष्मी का है रामायण में। ठीक है, ये उदाहरण भी सही है। जो हमारे आचार्य बताते हैं वो है केवट ने किया था, पाद सेवन किया था, और उसी जीवन में नहीं, बताते हैं कि पिछले जीवन में केवट एक फ्रॉग था। फ्रॉग को क्या बोलते हैं हिंदी? मेंढक। और वो अभी विष्णु सोए हैं मिल्क ओशन में, तो वहाँ पे वो पहुँच गए, और लक्ष्मी जी पाद सेवन कर रही है, और वो वहाँ पहुँच गए, उनको भी सेवा करना था। तो लक्ष्मी जी ने उनको निकलो यहाँ से, वापस पहुँच गए। अभी विष्णु कहाँ लेटे हैं?
अनंत शेष पे। तो उस टाइम पे अनंत शेष ने ऐसे किया, वो बेचारा वापस भाग गया। ऐसे 2-3 बार प्रयास किया। एक बार लक्ष्मी जी ने बोला निकलो, एक बार शेषनाग ने बोला निकलो। तो इस बार जब वो केवट बन के आया और उसने राम जी को बोला नहीं नहीं, वो जो भी उसका स्टोरी बोला, और आपने वो रॉक पे पैर रखा, वो स्त्री बन गई। अभी मेरे पास ऑलरेडी एक धर्म पत्नी है और मैं बहुत अमीर नहीं हूँ, और ये बोट मेरा एक ही साधन है धन कमाने का, उनको खिलाने का। अगर एक और स्त्री यहाँ बन गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। ये भी वो चतुराई कर रहे हैं, और भगवान को ऐसे चतुराई भी बहुत पसंद है। तो उन्होंने बोट पे बिठा के उनका क्या किया, चरण अभिषेक कि ये रज। भगवान समझ गए, भगवान बहुत प्रसन्न हो गए कि इतने चतुराई से वो कर रहा है मेरा भक्ति। तो जब वो कर रहे थे ऐसे, तो वो देख रहे थे ऐसे सीता को और लक्ष्मण को, क्योंकि लक्ष्मी कौन है, सीता मैया। लक्ष्मण, शेषनाग कौन है, लक्ष्मण। लास्ट टाइम अलाउ नहीं किया ना, देखो अभी अभी मैं कर रहा हूँ, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो पाद सेवनम, अर्चनम। सब सोचेंगे क्या है, जो भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सब अर्चनम। अर्चन खाली डीटी वर्शिप नहीं है, उसमें भोग भी इंक्लूड होता है। शबरी का एग्जाम्पल है। अर्चनम हो गया, वंदनम प्रेयर्स। इसमें एग्जाम्पल है विभीषण का। विभीषण, जब विभीषण आया और सरेंडर किया, उसने राम जी की स्तुति की और भगवान राम इतने इम्प्रेस हो गए, और भगवान को उसका इंट्रोडक्शन मिल चुका था पहले शूर्पणखा से। और शूर्पणखा जो डीमनेस है, उसने भी कहा कि विभीषण तो साधु है। तो जैसे कभी कोई करप्ट पर्सन है, वो बोले अरे ये तो बहुत ऑनेस्ट है, मतलब ये सच में ऑनेस्ट है। तो विभीषण के बारे में रामायण में कहा जाता है कि जैसे जीवा है, वो ऊपर और नीचे शार्प दांत है, और उसके बीच में एक सॉफ्ट कोमल जीवा है। कभी कभी हो जाता है, हम खा रहे हैं या जो बहुत फास्ट बात कर रहे हैं, कभी कभी कट हो जाता है, दुखता है, क्योंकि जीवा क्या है, बहुत सॉफ्ट है और दांत शार्प है। तो दिखाया, वर्णन किया है कि विभीषण का वैसा हाल था लंका में। विभीषण साधु है, भक्त है, और लंका में बाकी सब राक्षस है, डीमंस है। तो वैसे विभीषण भक्ति कर रहे थे। तो वंदनम, विभीषण के प्रेयर्स। दास्यम, अभी हनुमान जी हो गए पहले ही। लक्ष्मण, भरत जी ने दास के रूप में 14 साल राज किया। उन्होंने क्या किया, भगवान राम की पादुका को रखा, और जिस प्रकार राम जी ने अपना वनवास में जिया, उसी प्रकार भरत जी रहे थे एज अ मेंडिकेंट। दास्यम, लक्ष्मण, भरत। सख्यम, सुग्रीव, वो उसको डोज मिला लक्ष्मण से, उसके बाद वो लाइन पे आ गया। उसके पहले सुग्रीव ने थोड़ा फ्रेंडशिप को लाइटली लिया, पर जब एक बार डोज मिल गया लक्ष्मण का, उसके बाद सुग्रीव ने जो करना था सब किया भगवान राम के लिए। आत्मनिवेदनम, इसमें भी भरत का एग्जाम्पल दे सकते हैं। आचार्य देते हैं जटायु का एग्जाम्पल, कि जटायु ने सब कुछ, अपना स्ट्रेंथ, अपना स्पीच, अपना वैलर, अपना टैलेंट, हर चीज़ को राम की सेवा में लगाया। एंड में रावण से लड़ते वक्त हर चीज़, और एंड में उसने अपना लाइफ भी रखा सिर्फ इतना राम को बताने के लिए कि सीता मैया उस डायरेक्शन में गई है, रावण उसको दिखेगा। फिर उसने राम जी के गोद में शरीर त्यागा। तो राम कहते हैं मैंने अयोध्या तो भरत को दे दिया था, मैंने लंका विभीषण को दे दिया, मैंने किष्किंधा सुग्रीव को दे दिया, मेरे पास जटायु को देने के लिए कुछ नहीं था। तो राम ने स्वयं, जो दशरथ महाराज नहीं
फॉर्चून ले पाए, वो जटायु को दिया राम ने, उसकी अंतिम क्रिया की। सो दीज आर पर्सनैलिटीज फ्रॉम रामायण who also are experts in these 9 processes of devotional service. हम इन भक्तों का इंस्पिरेशन लें ये प्रोसेसेस श्रवण कीर्तन करने के लिए, और इस प्रकार जैसे प्रभुपाद कहते हैं हम लाइफ भर ये 9 प्रोसेसेस का शरण लेंगे तो भीष्म की तरह शरीर छूटेगा। हरे कृष्णा। इसका कोई प्रश्न? आज जैसे श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरोभाव तिथि भी है। आप में से कितने लोग राधा रमन मंदिर गए हैं? तो राधा रमन जी हम जानते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी वेंकट भट्ट के पुत्र थे। वेंकट भट्ट श्रीरंगम के पुजारी थे, और वहाँ पे उनका सौभाग्य था कि चतुर्मास चालू हुआ 2 दिन पहले। चतुर्मास के 4 महीनों में चैतन्य महाप्रभु उनके घर में रहे, और वहाँ पे गोपाल भट्ट, तभी गोस्वामी नहीं थे, वो महाप्रभु से बहुत आकर्षित हुए और महाप्रभु की सेवा करते रहे। इनफैक्ट जब वो महाप्रभु जाने वाले थे तो वो गोपाल भट्ट इतना रो रहे थे कि महाप्रभु और 2-3 दिन रुक गए। फिर महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया, और ऐसे उनका महाप्रभु के प्रति प्रेम बढ़ा कि जब वो नौजवान बने, उन्होंने घर छोड़ के वो गए वृंदावन। और जब महाप्रभु को पता चला कि ये वृंदावन आए हैं तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने उनको कुछ गिफ्ट्स भेजे। क्या गिफ्ट्स भेजे? बोलो। कोपेन और आसन। वेरी गुड, आसन दिया। फिर एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी के और महाप्रभु ने उनको दीक्षा दिया। फिर एक बार महाप्रभु बहुत विरह फील कर रहे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु के लिए, तो महाप्रभु उनके सपने में आए और महाप्रभु ने कहा नेपाल जाओ, मैं मिलूंगा उधर। तो गए नेपाल। कहाँ है महाप्रभु? गांडकी नदी में स्नान किया। जब उठे तो बहुत सारे शीला आ गए उनके चादर में। अरे वापस गए रखने को, वापस निकले, शीला आ गए उनके चादर में। कहा कि भगवान की इच्छा है, तो वो शीला लेके वो वृंदावन आए और वो शीला की पूजा करते थे। जो आसन दिया था महाप्रभु ने, उसमें वो शीला रख के पूजा करते थे। फिर जब बाकी गोस्वामी जिनके पास विग्रह थे, तो एक एक करके मंदिर बने, वो पूजा करने लगे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में भी आया कि मुझे भी अगर होता एक विग्रह तो मैं और अच्छे से उनका अर्चन कर सकता, उनका श्रृंगार कर सकता, उनकी आरती कर सकता, उनके लिए एक मंदिर बना के लोग आके उनका दर्शन ले पाते। ऐसे वो सोच रहे थे। स्पिरिचुअल डिज़ायर्स होना गलत नहीं है। ऐसे सोचते वो उन्होंने रेस्ट लिया, और नेक्स्ट डे जब वो उठे तो देखा वो सारी शिलाएं क्या बन गए? राधा रमन बने। और राधा रमन एक ही अभी डीटी है जो ओरिजिनल डीटी वृंदावन में अभी भी है। बाकी सारे डीटीज कहाँ गए? जयपुर, करौली, बेसिकली राजस्थान में जो वैष्णव राजपूत राजा थे वो ले गए। तो ये राधा रमन ओरिजिनल डीटी अभी भी है। और आप देखेंगे राधा रमन क्लोजली देखेंगे तो उनके दांत भी हैं। वो बहुत सुंदर स्वरूप है राधा रमन का। एंड फिर जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वो एक व्याकरण के एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने कई किताबें लिखे भगवान की भक्ति पे। और फिर जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनका समाधि राधा रमन मंदिर के बगल में है। तो आज के दिन पे गोपाल भट्ट गोस्वामी के तिरोभाव पे हम गोपाल भट्ट गोस्वामी का स्मरण कर सकते हैं कि वो हमें आशीर्वाद दें कि हम भी कुछ परसेंटेज महाप्रभु के मूवमेंट में श्रील प्रभुपाद को हम योगदान दे पाएँ हमारे जीवन से, और इस प्रकार ये 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति हम अच्छे से कर पाएँ एंड हमारे जीवन प्रभुपाद की सेवा में सफल हो। हरे कृष्णा। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज की। कोई प्रश्न? हाँ, तो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, पर राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि फिर भी हम वो इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि ये इट इज़ नॉट समथिंग दैट वी शुड फॉलो ऑफ कोर्स, बट वी सी द मूड, द भाव, दैट द भाव वॉज सोनली टू प्लीज द लॉर्ड।
जैसे जो वृंदावन लीला में कई बार जो ग्वाल बाल हैं कृष्ण के मुंह में कुछ डाल के उनका मुंह दबा के वो खाते थे। कई बार कृष्ण के पहले वो सब खा लेते थे और कृष्ण उनके मुंह से निकाल के खाते थे। सो दीज आर नॉट थिंग्स टू बी replicated. But what we understand is the love between the cowherd boys and Krishna is so much that those things are more pleasing to the Lord than proper शुद्धता से जो हम उनको अर्पण करें. Ultimately it is the love that the Lord is looking for. So here is an example of that unalloyed devotion, and then in that then the Lord will accept. So we take inspiration from that. और कोई प्रश्न? जो आपने रामायण में शूर्पणखा का बताया था, जो शूर्पणखा था उसके बाद कोई स्टोरी नहीं है। शूर्पणखा कहाँ गायब हो गई, वो रिसर्च करेंगे, मुझे नहीं पता, कहीं तो होगी। कोई और प्रश्न? ठीक है, अभी हाँ हाँ वहाँ पे शालिग्राम शिलास भी हैं। आप जाएंगे देखेंगे तो गोपालगढ़ गोस्वामी के समाधि पे भी हैं और राधारमण मंदिर में भी हैं। ठीक है, अभी जन्माष्टमी आ रहा है, 1 महीने बाद जन्माष्टमी। आज 15th है, 15 जुलाई। 16 अगस्त को जन्माष्टमी है, एग्जैक्टली 1 मंथ। तो जन्माष्टमी में हम सब ज़्यादा लोड लेते हैं सेवा का, तो आप सब योगदान दीजिए, जैसे श्री सुदाम प्रभु बताएं वैसे सेवा कीजिए। और स्पेशली जन्माष्टमी के 3-4 दिन पहले ईटिंग स्लीपिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, तो वो एक ऑस्टेरिटी है सबके लिए, पर हम वो करें क्योंकि बाकी 364 डेज इंक्लूडिंग गौर पूर्णिमा, इंक्लूडिंग नित्यानंद त्रयोदशी, इंक्लूडिंग राधा अष्टमी, ये सब हमारे फेस्टिवल्स हैं। एक जन्माष्टमी है जो पब्लिक के लिए है, तो जन्माष्टमी में हमें कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, पर हमें मैनेजमेंट में ऐसे हमें अपना सेवा देना है। भले मुझे कहा जाए कि प्रभु वहाँ पे ना वो नीचे सूट स्टैंड है, आपको अभिषेक के टाइम पे वहाँ खड़े रहना है और अनाउंसमेंट करना है कि चप्पल यहाँ उतारो। और भले जो आपको जो सेवा दे रहा है वो स्वयं अभिषेक करेंगे, अगर हम लोग आपको बोलेंगे प्रभु आपका सेवा है ना उधर है, और आप अरे प्रभु आप तो अभिषेक कर रहे हो, मुझे भेज दिया शू स्टैंड में, डोंट वरी, वो आपको अभिषेक देखने से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वहाँ वो सेवा करने के लिए। तो रथ यात्रा भी अभी ऐड हो गया है, पहले एक ही फेस्टिवल था पब्लिक के लिए, बाकी तो हमारे लिए तो अभी 2 हो गए हैं। नेक्स्ट ईयर रथ यात्रा के पहले भी आपको सेम स्पीच मिलेगा, रथ यात्रा पब्लिक के लिए है, बाकी 364 डेज हम जगन्नाथ का दर्शन ले पाएंगे, रथ यात्रा पब्लिक के लिए। तो जन्माष्टमी में मैं देखता हूँ हमारे जो चौपाटी के भक्त हैं, आप कभी जी भी जाएंगे या राधा गोपीनाथ मंदिर जाएंगे, आप देखेंगे वो लोग बहुत, ये उनका मूड बहुत अच्छा है कि मुझे जो सेवा दी गई है मैं उसी को अच्छे से करूँगा, ये उनकी ट्रेनिंग है। ये नहीं कि ठीक है अभिषेक के टाइम में भाग के अभिषेक देखूंगा या प्रसाद के लिए भाग जाऊंगा या कुछ और, या मुझे इम्पॉर्टेंट सेवाएं चाहिए। बहुत उनके सीनियर डिवोटीज़ होते हैं जो किचन में सेवा करेंगे या प्रसाद बांटने का सेवा करेंगे या क्राउड कंट्रोल का सेवा करेंगे। तो हमारे ये भाव होना चाहिए कि मुझे जो सेवा मिले मैं करूं, क्यों, मुझे पब्लिक को राधा माधव मंदिर का, इस्कॉन भिवंडी का बहुत अच्छा इंप्रेशन देना है। तो उसके लिए अगर मुझे चप्पल स्टैंड के बाहर अनाउंसमेंट ही करना पड़े ना तो भी वो ठीक है, मुझे अगर प्रसाद सेवा करना पड़े वही ठीक है। अगर मुझे पीछे कुछ बैक एंड वर्क है कि जब वो सोशल मीडिया टीम वीडियो बनाएगा मैं उधर किधर भी नहीं हूँ, अरे तू था नहीं क्या जन्मदिन, वो वीडियो वहाँ आया नहीं, वो कैमरा वाला आया नहीं उधर जहाँ मैं था। बट राधा माधव की दृष्टि सब जगह है, वो देखेंगे। और डिवोटीज़ को अगर हमारे वजह से हेल्प मिलता है कि वो ठीक है, ये डिवोटी हैं, ये सब जो 20 भक्त हैं यहाँ पे आज बैठे हैं, ये सब रिस्पॉन्सिबल डिवोटीज़ हैं, इनको कोई भी सेवा दे सकते हैं, ये अच्छे से करेंगे, तो उससे मैनेजमेंट का काम आसान हो जाता है। अल्टीमेटली
भगवान प्रसन्न होंगे। तो ये मूड से हम प्लीज़ अभी जो 1 महीना बाकी है उसमें सेवा में लगे, सुदामा प्रभु से पूछें क्या सेवा है और उसको हृदय से करें। एंड इस प्रकार हम पब्लिक को दिखाएं कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस दें कि वो मंदिर से जुड़े और फिर नेक्स्ट ईयर भक्तों की संख्या और बढ़े। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल।